Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeth School. So students, I hope you all understand the previous class. So students, today we are going to complete the remaining part of the chapter, Components of Food. So in the previous class, we studied about the nutrients, carbohydrate, proteins and fats. But today we are going to study the very essential nutrient which is known as vitamins. So what is the function of vitamins? So vitamins helps in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. The food items rich in vitamins are called protective food because as they protect our body from diseases and keeps us healthy. So vitamins हम सबको किस तरीके से मदद करता है? क्यों वो हमारे आईज, बोन्स, टीथ एंड गम्स को हेल्दी रखता है. और अगर कोई फूड आइटम्स बहुत उसमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स हो तो उसको क्या बोला जाता है? प्रोटेक्टिव फूड बोला जाता है, क्योंकि वो हमें डिजीजेस से प्रोटेक्ट करता है और हमें हेल्दी रहने में मदद करता है. सो बेसिकली द क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. विटामिन्स दो ग्रुप में डिवाइड किए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज फैट सॉल्यूबल. So fat soluble includes vitamin A, vitamin D, vitamin E and vitamin K. And the second group is water soluble, which is vitamin C, vitamin B complex. Okay students? So here there are some sources of vitamins A. तो कुछ sources of vitamin A मतलब जो चीज़ खाने से हम लोग को विटामिन मिल सकता है. जैसे कि विटामिन हम सभी ने अभी पढ़ा कि विटामिन बहुत तरीके के होते हैं. तो ये कुछ sources है जहाँ से हमको विटामिन A मिलेंगे. तो क्या क्या है वो? मिल्क, फिश ऑयल, some like papaya, carrot. So these are all the sources of vitamin A. So some sources of vitamin B includes liver, like it contains meat, and some dals and pulses like rice. Okay, so some sources of vitamin C were like orange, tomato, lemon, amla, guava. So these are all the sources of vitamin C. And some sources of vitamin D were milk, butter, that's like liver, egg, fish. These are all the sources of vitamin D. जो इन सब को खाने से हम लोग को क्या मिलेगा? विटामिन डी. And also students, is a very interesting something facts to know about, like our body also prepares vitamin D in the presence of sunlight. तो हम लोग का जो शरीर है, अगर हम लोग सनलाइट मतलब धूप में खड़े हो जाएं तो हमारा बॉडी अपने आप ही क्या प्रिपेयर कर लेता है? विटामिन डी प्रिपेयर कर लेता है. तो ये हुआ ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हम सबको जानने को मिला. तो चलिए, Now we will study about vitamins, functions and sources. तो हम अभी पढ़ेंगे कि कौन कौन से विटामिन्स होते हैं और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और उसके क्या क्या सोर्सेस होते हैं, मतलब वो विटामिन्स हम सबको कहाँ से मिलते हैं. So like vitamin A, what is the function of vitamin A? It keeps our eyes and skin healthy. And what are the sources? Mango, pumpkin, carrot, milk, fish oil, etc. So these all are the sources of vitamin A. So second one is vitamin B, which is essential for various functions of our body. So what are the sources? Wheat, rice, fruits, eggs, fish, nuts, etc. Now we will study about vitamin C. So what is the function of vitamin C? It fights against many diseases. So what are their sources? Amla, guava, orange, lemon, tomato. So these all are the sources of vitamin C. Now we will study about vitamin D. So it helps our body to use calcium for bones and teeth. तो विटामिन डी हम सबको जो कैल्शियम जो होता है, एक मिनरल है कैल्शियम, उसको लेने में हेल्प करता है, उसको यूज़ करता है और हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाता है. और इसके कुछ सोर्सेज क्या हैं? एग्स, मिल्क, बटर, फिश, सनलाइट एक्सपोजर एक्सेट्रा. तो सनलाइट एक्सपोजर मतलब धूप में अगर हम लोग खड़े हो रहे तो हमारा बॉडी अपने आप विटामिन डी प्रिपेयर कर लेता है. तो यही चीज़ हमने अभी पढ़ा. Vitamin E
It helps maintains healthy skin and hair, slows down aging and a powerful antioxidant. So विटामिन ई क्या हेल्प करता है हम लोगों को, हम लोग का जो स्किन है उसको, स्किन और हेयर है उसको हेल्दी रखने में मदद करता है, और हम एजिंग मतलब हम लोग जैसे धीरे धीरे बूढ़े हो जा रहे हैं तो उस एजिंग को वो स्लो डाउन करता है। अगर हम लोग विटामिन ई ज़्यादा मात्रा में ले तो हम लोग ज़्यादा दिन तक जवान रह सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। सो what are their sources? Nuts, seeds, vegetable oils and banana. So now we will study about vitamin K. So what is the function of vitamin K? It is an important factor in blood clotting, bone healthy and body repair. So blood clotting मतलब हम लोग, जब हम लोग का अगर हाथ पैर कट जाए तो ब्लड हम लोग देखते हैं कि अपने आप ही थोड़ी देर बाद बहना बंद हो जाता है। तो इसके जो क्लॉटिंग का काम कौन करता है? विटामिन के करता है, और ये हमारे बोन्स और बॉडी को रिपेयर भी करता है और उसको हेल्दी भी रखता है। तो सम सोर्सेस ऑफ विटामिन के वेर टोमेटो, स्पिनच, ब्रोकली एक्सेट्रा। सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट some minerals. So what are minerals? So minerals are used by the body to perform important functions such as formation of bones, teeth and blood cell, and also it maintains normal heartbeat. So minerals किस चीज़ के लिए हमारे बॉडी में यूज़ होता है? तो हम लोग जो बॉडी में जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारे जो बोन्स जो बनते हैं, नए नए बोन्स जो बनते हैं, टीथ का जो फॉर्मेशन होता है, ब्लड सेल्स, जितने भी ब्लड सेल्स हैं उसका जो फॉर्मेशन होता है, और हमारा जो हार्ट बीट है उसको भी मेंटेन रखने के लिए हम लोगों को मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है। सो द मेजर 5 मिनरल्स आर आयोडीन, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये सारे जो मिनरल्स हैं ये बहुत ही मेजर है, मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आयोडीन है, आयरन है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे मिनरल्स के नाम हैं। तो हियर आर सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन यू कैन सी, लाइक फिश, लाइक हियर दिस द प्रॉन, like here ginger, spinach. So these are all the sources of iodine. Here there are some sources of iron like apple, spinach and like meat. So these are all the sources of some irons. So here you can see some sources of phosphorus also, like milk, banana, some rice, grains. These are all the sources of phosphorus. So these are sources of calcium like milk and egg. So these are the examples of some minerals and their sources. Now we will study about the minerals and their functions, benefits and their food sources. जैसे कि हम अभी पढ़ेंगे कि कौन कौन से मिनरल होते हैं और उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और उसके फूड सोर्सेस क्या क्या होते हैं। सो लाइक कार्बन, कैल्शियम. So calcium, what is the function of calcium? It builds bones, teeth, helps blood clot, assists nerves, muscles and heart to function. So ये किस चीज़ में हेल्प करता है? हमारे बोन्स को, टीथ्स को ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, बोन्स टीथ्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है, और नर्व, हमारे जो नर्व हैं, मसल्स है, उसको असिस्ट करता है, और हमारा जो हार्ट है, इसके हार्ट को भी फंक्शन मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है। So what are their food sources? Like milk, cheese, yogurt, buttermilk, tofu. So if you eat this, you can get calcium. So it's very important, students. You all must drink milk. Okay. So what is phosphorus? So phosphorus helps to build teeth and bones. Helps body get energy from food. So phosphorus किस चीज़ में हेल्प करता है? हमारे जो teeth है, bones हैं, उनको build करने में हेल्प करता है, और हमारे body में जो खाने से एनर्जी आती है उसको पाने में हेल्प करता है। तो व्हाट आर देयर सोर्सेस? मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, पोल्ट्री, एग्स, नट्स, ड्राइड पीस एंड बीन्स. So these are all the products which helps us to get phosphorus. So iron forms of red blood cells, helps body get energy from foods. तो वो किस चीज़ में हेल्प करता है? रेड ब्लड सेल्स फॉर्म करने में हेल्प करता है और बॉडी को एनर्जी पाने में हेल्प करता है. तो लिवर ऑर्गन मीट्स like egg yolk, meat, poultry. So these are all the sources of minerals. Now we will study about sodium. Controls water balance, regulates nerves,
impulses and muscle contraction. So muscle contractions जो होते हैं हमारे, जो हम जो हाथ पैर उठाते हैं, ये एक एक हमारे जो मसल्स मौजूद है, तो इस कॉन्ट्रैक्शंस को, इस फंक्शन को हेल्प करने में कौन मदद करता है? सोडियम. सो हियर आर सम फूड सोर्सेज ऑफ सोडियम विच आर सॉल्ट, मीट, फिश, पोल्ट्री, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. Potassium helps to control water balance and regulates nerves, impulses, muscle contractions and heart rhythms. And what are the sources? Fruits, vegetables, meat, fish, poultry, milk and milk products. And what is the function of iodine? Regulates energy. तो iodine का अगर हम लोग कोई फूड में आयोडीन होगा तो हम लोग खाएंगे तो हम लोग को एनर्जी रेगुलेट करने में वो हेल्प करता है. लाइक फूड सोर्सेज, सी फूड, iodized salt. Magnesium helps us to part of teeth and bones, helps body use carbohydrates, helps to regulate nerve and muscle contraction. So what are their sources? Whole grain, cereal, nut, dried peas and beans. Milk, meat, leafy greens. Leafy green means all leafy vegetables, all leafy green vegetables. Copper helps to build body cells, aids digestion and absorption. It also lubricates joints and organs, regulates our body temperature also. So all the liquid water, coffee, tea, soft drinks, fruit, vegetable juices, milk guys are also included copper. So students, अगर आप ये सारे food sources खा रहे होंगे या फिर अगर खाओगे आप सब, तो आप सबको उन सब में से ये मिनरल्स आपको मिलेगा जो आपके बॉडी में इतने सारे फंक्शंस के लिए हेल्प करता है और हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी होता है. सो नाउ हम सभी ने अभी हम सभी पिछले क्लास में ये पढ़े थे कि बहुत क्या कंपोनेंट्स होते हैं फूड के. न्यूट्रिएंट्स, डाइटरी फाइबर या रफेज और वाटर. तो हम सब ने अभी तक पूरे सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सब के बारे में अभी पढ़ा. तो अभी हम पढ़ेंगे the second component which is called dietary fibers or roughage. So dietary fibers are also known as roughage. तो dietary fibers को हम लोग roughage भी बोल सकते हैं. So roughage does not provide any nutrients to our body, but it is essential component of our food and adds to its bulk. This helps our body get rid of undigested food and also helps in easy absorption of food. तो roughage हम लोगों को जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन हमारे जो कंपोनेंट ऑफ फूड में से वो जो एक है वो बहुत ही हमारे लिए एसेंशियल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो ये किस तरीके से हम लोग को हेल्प करता है? हमारे जो अनडाइजेस्टेड फूड हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, तो उस अनडाइजेस्टेड फूड को वो वो गेट रीड करना, मतलब निकाल देने में वो हेल्प करता है. और किस लिए हेल्प करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. जो हमारे अंदर जो डाइजेस्टेड फूड हो रहे हैं उसको जो पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उस चीज़ के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है. सो रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड. तो रफेज कैसे हम लोग को कहाँ से मिलते हैं? प्लांट प्रोडक्ट से ज़्यादा हम लोगों को ये डाइटरी फाइबर्स मिलते हैं. लाइक व्हाट आर द एग्जांपल्स? होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, fresh fruits and vegetables are the main sources of roughage. Understood, students? Now we will study about the third component which is known as water. So water is, as you all know that water is very essential because बिना पानी पिए हम सभी जिंदा नहीं रह सकते हैं. So water performs the essential function of absorbing nutrients from our food. It also helps in throwing out some wastes from our body as urine and sweat. सो वाटर बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल फंक्शन हम लोगों एब्जॉर्बिंग जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग जो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स खाने में से, तो वो बहुत ही ज़्यादा एक एसेंशियल फंक्शन प्ले करता है. और वो हम सबको हेल्प करता है हमारे बॉडी में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट्स हैं, तो उनको निकालने में एज ए यूरिन एंड स्वेट. सो नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक सच एज वाटर, मिल्क, टी. In addition, we add water to most cooked food. So normally हम लोग पानी पीते हैं और अगर कुछ लिक्विड्स ड्रिंक करते हैं, लाइक कुछ कोल्ड ड्रिंक्स हमने पिया या फिर कुछ मिल्क पिए या फिर कुछ चाय वाय पिए, तो उसमें भी लिक्विड होता है, मतलब वाटर दे के ही वो बनाया जाता है. तो और हम लोग को कहाँ से वाटर मिलता है? जो हमारे जो खाना बनते हैं, कुक्ड फूड्स बनते हैं, एक डिशेस बनते हैं, हमारे जो फेवरेट डिशेस होते हैं, तो उनमें भी वाटर से वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, उनमें भी वाटर बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज बिना पानी के कोई खाना नहीं बन सकता है. तो वाटर इज़ वेरी एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ फूड. ओके स्टूडेंट्स?
So now this is the most important part of this chapter, which is known as balanced diet. Means what we are eating and what we are eating daily, what we are intaking daily should be balanced in a very good way. So that is known as the balanced diet. So we will study about this in detail, that the food we normally eat in a day is our diet. So हम लोग जो खाना normally daily खा रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, डाइट. वही हम लोग का एक डाइट है. So for growth and maintenance of good health, our diet should have all the nutrients that our body needs in right quantities. So हमारे बॉडी के, हमारे गुड हेल्थ के, मतलब हमारे जो हेल्थ का जो ग्रोथ है, मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ है, तो हमारा ये डाइट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम सबको जो जितने सारे न्यूट्रिएंट्स है वो सब मिले और हम उतना ही क्वांटिटी में वो खाना खाएं और वो न्यूट्रिएंट्स भरे हुए खाना खाएं. तो नॉट टू मच वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर. ज़्यादा भी ना खाए और कम भी ना खाए, बैलेंस्ड खाएं एकदम, जैसे कि इसको बोला जाता है बैलेंस्ड डाइट. सो द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर. सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट. और उस डाइट में, मतलब और उस खाने में रफेज और वाटर का भी एकदम अमाउंट जो है वो बहुत सही होना चाहिए, और उसी को बोलते हैं हम बैलेंस्ड डाइट. अ बैलेंस्ड डाइट इंक्लूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन रिच पल्सेस, sprouted seeds, etc., with combinations of various flours and cereals for carbohydrates and fats, along with fruits and vegetables which provide the necessary vitamins and minerals. So students, you can see that a balanced diet includes all the combination of proteins, like all the nutrients, all the components of foods. What are those components? That like nutrients with roughage and dietary fibers with water. तो ये तीनों जो components है ये पूरा balanced way में होना चाहिए, और वैसा ही हम लोगों को खाना पूरे दिन में हम लोगों को खाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर में गुड हेल्थ हो और हमारा ग्रोथ भी अच्छे से हो. So I hope you all students understood this. So of course you have to keep in mind some points, like food must be cooked properly because some nutrients get destroyed in the process of cooking and preparations. Like example vitamin C. तो हम जो खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं, वो अच्छी तरीके से पकना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग खाना बनाते हैं या फिर पकाते हैं प्रिपरेशंस के टाइम में कुछ न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, मतलब कुछ न्यूट्रिएंट्स वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. तो उस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए. जैसे कि विटामिन सी हम लोग जब ज़्यादा खाना पका लेते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो नहीं रहता है उस खाने में. तो हमको इस बात का काफ़ी ख्याल रखना चाहिए. सो डू नॉट वॉश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम. तो हम लोग को फ्रूट्स जो और वेजिटेबल्स जो है, अगर उसको काट लिए हैं तो उसके बाद हम लोग को वो धोना नहीं चाहिए. काटने से पहले या फिर छीलने से, पीलिंग मतलब छीलने से पहले ही हम लोग को उसको वॉश कर लेना चाहिए. ओके. सो डू नॉट वॉश राइस एंड पल्सेस मैनी टाइम्स बिफोर कुकिंग. सो राइस और पल्सेस हैं, आप लोग देखे होंगे, आपकी मम्मी जो है जो राइस और पल्सेस को बनाने से पहले धोती हैं. तो इट्स बेटर कि हम लोग उसको या फिर 2 टाइम्स और 3 टाइम्स ही धोएं, उससे ज़्यादा नहीं धोएं, क्योंकि अगर ज़्यादा धोएंगे तो उसमें से कुछ हम लोग का जो विटामिन मिनरल्स वॉट एवर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट जो रहता है राइस में, तो वो कम हो सकते हैं. डू नॉट थ्रो एक्सेस वाटर ऑफ अवर कुक्ड फूड. तो हम लोग के कुक्ड फूड में कुछ जो एक्सेस वाटर, मतलब अगर हम लोग कोई खाना बना रहे हैं उसमें पानी ज़्यादा हो गया है तो हम लोग को वो फेंकना नहीं चाहिए. इवन दाल, अगर हम लोग दाल बना रहे हैं और उसमें पानी ज़्यादा हो गया, अगर वो पानी हम लोग पिएंगे दैट विल बी वेरी 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 न्यूट्रिशियस फॉर अस, और वो हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है. तो ये पानी हम लोग को नहीं फेंकना चाहिए, एक्सेस वाटर. डू नॉट ओवर कुक. मतलब अगर कोई खाना एक बार बन चुका है उसको दोबारा, मतलब बहुत देर तक पकाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद रहते हैं, जो भी कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स मौजूद रहते हैं, वो नष्ट हो सकते हैं. डू नॉट हीट फूड अगेन एंड अगेन. कोई भी खाना हमें बार बार गर्म नहीं करना चाहिए. अगर कोई खाना हमने बनाया है हम लोग को जल्दी खा लेना चाहिए. उसको बार बार हीट करने से भी वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो विटामिन मिनरल्स, जो भी वट एवर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन दैट फूड गेट डिस्ट्रॉयड. ओके स्टूडेंट्स, यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड दीज पॉइंट्स. सो नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट विल हैपन इफ़ वी डोंट ईट वैराइटीज़ ऑफ फूड्स. लाइक हम लोग अगर वैराइटीज़ ऑफ फूड्स अगर नहीं खाएंगे
तो हम लोग को जैसे कि कोई एक ही चीज़ पसंद है, हम लोग एक ही चीज़ खाएंगे। अगर वैराइटीज़ ऑफ फूड हम लोग नहीं खाएंगे तो हम लोग को क्या हो सकता है? सो नाउ what will happen? It will be caused deficiency in deficiency diseases। अगर हम लोग कोई भी varieties of foods नहीं खाएंगे, मतलब हम लोग को nutrients भी varieties of नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोग को क्या हो सकता है? deficiency diseases हो सकता है। So what is deficiency diseases? Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body। So diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases। तो deficiency diseases क्या होता है? तो हम लोग के शरीर में अगर न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में नहीं जाए या फिर एक और दो ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स कम जाए तो हमारे बॉडी में लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है और हमें डिजीजेज होने लगता है। लाइक डेफिशिएंट इन प्रोटीन, अगर आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम हो तो आपको क्या क्या हो सकते हैं? सिम्टम्स, मतलब उसके कुछ सिम्टम्स है डिजीजेस के, लाइक स्टंटेड ग्रोथ, मतलब आपका हाइट शॉर्ट रहेगा। स्वेलिंग ऑफ फेस, मतलब मुंह पूरा आपका फूल जाएगा। डिसकलरेशन ऑफ हेयर, मतलब वाइट हेयर, मतलब आपका जो हेयर कलर है वो धीरे धीरे वाइट होने लगेगा। स्किन डिजीजेज होने लगेगा और डायरिया का भी प्रॉब्लम हो सकता है। सो दीज ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंट इन proteins। So you should take care that whatever you are eating should be contains all the nutrients। Okay, so now this is deficient in carbohydrates and proteins। Like symptoms, growth may stop completely, very lean and thin, may not be able to walk properly। तो आपका ग्रोथ बहुत कम हो जाएगा, आप बहुत पतले और दुबले हो जाएंगे और आप ठीक से चल भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो दीज आर द सिम्टम्स इफ़ यू लैक carbohydrates or proteins। Okay, so now we will study the particular vitamins or minerals which can cause deficiency diseases or disorder and their symptoms। हम लोग अभी पढ़ेंगे कि क्या क्या विटामिन्स और मिनरल्स होता है और उसके क्या क्या डिजीजेज हो सकता है अगर वो लैक हो, मतलब वो विटामिन्स मिनरल्स हमारे शरीर में अगर उसकी मात्रा कम हो, क्या क्या डिजीज हो सकता है और उससे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। लाइक इफ़ यू लैक विटामिन ए इन योर बॉडी देन यू कैन लॉस योर विजन। ओके, देन लॉस ऑफ विजन हो सकता है, मतलब आपका जो आई साइट है, आप देखने में आपको बहुत तकलीफ होगी। तो सिम्टम्स क्या क्या है? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, लाइक नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब आप रात को नहीं देख पाएंगे, रात को आप अंधे हो जाएंगे, वैसे हो सकता है। ये विटामिन ए की कमी से एक डिजीज़ है। सो सम कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन, कोई किसी का पूरा ही विजन लॉस हो सकता है। फॉर विटामिन B1 it can causes beriberi is a name of a disease। सो व्हाट आर द सिम्टम्स? वीक मसल्स, मतलब मसल्स को आपको बहुत वीक कर देंगे और वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, आप में बहुत ही कम मात्रा में एनर्जी बची रहेगी कोई भी काम करने के लिए। विटामिन सी से क्या हो सकता है? स्कर्वी। सो स्कर्वी में क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स, जो आपके जो टीथ के ऊपर जो गम्स हैं माउथ में, तो वो क्या हो सकता है? उसमें से ब्लीड हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। तो इसलिए किस वजह से है? विटामिन सी की कमी की वजह से है और बहुत टाइम लग सकता है उसको ठीक होने में। विटामिन डी में क्या हो सकता है? आपको रिकेट्स हो सकता है, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। सो अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो आपको रिकेट्स हो सकती है और उसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो बोन्स है बहुत ही सॉफ्ट हो जा रहे हैं और बेंड हो जा रहे हैं, मतलब आप ही बहुत ही दुबले पतले हो जा रहे हैं और वो बोन्स जो हैं वो बहुत सॉफ्ट और बेंड हो जा रहे हैं। इफ़ यू लैक कैल्शियम दैट यू बोन एंड टूथ विल बी डीके। सो अगर आप में कैल्शियम की कमी होगी, जो आपकी जो हड्डी मतलब बोन्स होंगे और टूथ होंगे वो उसमें डीके हो जाएगा, मतलब वो ख़राब होने लगेगा। और आपके सिम्टम्स क्या है? वीक बोन्स, टूथ डीके। If you lack iodine, it can cause goiter. Goiter is the name of a disease। So glands in the neck appear swollen, mental disability in children। So अगर आप में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो आपको एक डिजीज़ हो सकता है, वो क्या नाम है? गोइटर। तो इसमें क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? जो नेक है, आपका जो गला है वो बहुत ज़्यादा फूल जाता है, गला का जो ग्लांस है, और आपको मेंटल डिसेबिलिटी चिल्ड्रंस में ज़्यादातर पाया गया कि उनमें मेंटल मतलब मानसिक शक्ति जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। इफ़ यू लैक आयरन इन योर बॉडी देन इट कैन कॉज एनीमिया। अगर आप में आयरन की कमी होगी तो आपको क्या होगा? एनीमिया हो सकता है और इसका सिम्टम्स क्या है? वीकनेस, आपको बहुत ही वीकनेस होगा। सो दीज आर ऑल द सिम्टम्स एंड
their deficiency diseases. So students, the chapter is completed. I hope you all understood the whole chapter and enjoyed, because it's a very interesting chapter. You should always take care about your health, and this is a chapter like where we can take care of our health. So now moving to the exercises of this chapter. So students, I am going to discuss these exercises because there are very small questions like that have just like tick marks and some one word answer. So I am going to tell you all the answers and you will do in your copy. So students, the first question is, name the major nutrients in our food. So what are the major nutrients in our food? You all know that are carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals. The second one, name the following the nutrients which mainly gives us energy in our body. You should all know that which nutrients gives us energy. That is carbohydrates gives us energy, you know. So that second one is the nutrients that are needed for growth and maintenance of our body. So what nutrients helps us to growth and maintenance? That is proteins and minerals. The third one is the vitamin required for maintaining good eyesight. So विटामिन हम लोग को ताकि हम लोग का आई साइट जो है वो अच्छा हो, तो कौन सा विटामिन की ज़रूरत होती है? दैट इज़ विटामिन ए. A mineral that is required for keeping our bones healthy, which is called calcium, which is very important. You know, you can be strong, you can be very strong if you eat calcium rich foods. Okay, now we will moving to the third question, which is the name two foods rich in fats, starch, dietary fibers and proteins. These like fats, कुछ ऐसे खाने के नाम, फूड आइटम्स का नाम बोले जिसमें फैट्स रिच है, लाइक ऑयल बेस्ड फूड्स जो हैं, और क्रीम, बटर, these are all kinds of foods. Like starch, rice, wheat, these are all starch contained food. Dietary fibers includes whole grains and raw vegetables. We just studied that the plant products are very rich in dietary fibers. The proteins rich food is we can say milk, soya beans. These are all protein rich foods. Now this is moving to the fourth question. The first question is by eating rice alone we can fulfill nutritional requirement of our body. So students, what do you think about it? By eating rice alone, हम लोग सिर्फ चावल खाने से क्या अपने बॉडी के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, वो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सबके हम लोग फुलफिल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. हमने अभी कहा कि हम लोग को क्यों वैराइटीज ऑफ खाना खाना चाहिए, तो ये this will be a big cross. Okay, now the second one, deficiency diseases can be prevented by eating a balanced diet. So हम लोग अगर balanced diet, proper balanced diet लें तो हम लोग क्या deficiency diseases को prevent कर सकते हैं? Yes, of course student, we can prevent the deficiency diseases by taking a proper balanced diet. We can fight with them, like so this will be a big tick mark. Okay, so balanced diet for the body should contain a variety of food items. Yes, balanced diet में बहुत सारे food items की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर एक food items में अलग अलग nutrients मौजूद होते हैं. Meat alone is sufficient to provide all the nutrients to the body? Not at all students. Meat alone cannot provide all the nutrients to the body. Okay, so meat अकेला नहीं हम लोग को provide कर सकता है nutrients. So this will be a big cross. Now moving to the fill in the blanks. The first one is dash is caused by deficiency of vitamin D. So what is the answer students? I can expect you from you all. So the answer is rickets. Rickets is caused by the deficiency of vitamin D. The second one is deficiency of dash causes a disease known as beriberi. So vitamin B1 is the answer of this, because vitamin B1 is, if the vitamin B1 lacks, then it causes beriberi. So deficiency of vitamin C causes a disease known as scurvy. Night blindness is caused due to deficiency of vitamin A in our food. Okay students, the exercises is completed. I hope you all enjoyed my class, and this chapter is seriously very interesting student. I hope you all understood and enjoyed it a lot. So students, do all the notes in your fair copy. Do all the exercises also in your fair copy. Okay students, complete it. Learn all the notes and revise the chapter thoroughly. आपको पूरी जो notes है जो provides किए गए हैं, आप सब उसको copy में उतार लीजिएगा, लिख लीजिएगा, और सारी जो exercise है आपको हमने answers बोल दिए हैं,
आप सब उसको भी कर लीजिएगा। और जो नोट्स है सारे अच्छे से पढ़िए और चैप्टर को और एक बार अच्छे से पूरा रिवाइज कीजिए। एंड स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन से मी एंड आई एम गोइंग टू क्लियर यू ऑल डाउट्स। ओके, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो, कोई भी डाउट है, तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। मैं उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो स्टूडेंट्स, मीटिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर in the next class. So students, till then study this chapter, and this is a very interesting chapter. Study, and we will meet soon with new chapter in a new class. Thank you students.